چلے گئے. اور یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹیم ورک یہاں موجود ہے سبھی کو السلام علیکم. تقریر تو ہے اختیار بیگ بھائی کو پتہ ہے کہ ہمیشہ آتی ہے, گوڈل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن دو باتیں ان جو میرے دونوں بھائیوں نے کی. ایک علیم خان صاحب نے کی کہ واقعی اگر ہم پورے اس ریجن میں دیکھیں تو 2% کی عزت کی بات آپ نے کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ جو 2% جسے ہم نے سمجھ کے نکالا تھا وہ ٹکا بھی کہاں سے کہاں چلا گیا. اور دوسری بات ہمارے چیئرمین صاحب نے کی. دونوں باتوں میں وزن اس بات کا ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں. آج علیم خان صاحب کا یہ جو پروجیکٹ ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو صحیح کہا کہ نہیں لگتا کہ ہم پاکستان میں ہیں. اور جب یہ بن جائے گا تو واقعی دنیا میں اس کا چرچا بھی ہوگا. لیکن جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ بن گئے, یعنی اچھا بزنس مین, اچھا سیاستدان, لیکن اگر نہیں بن سکے تو ہم اچھا پاکستانی نہیں بن سکتے. اور ہمیں یہ وجہ ڈھونڈنی ہے کہ جب سارا ہی ٹیلنٹ ہم سب میں موجود ہے اور جب ہم اس پنڈال کو اتنا خوبصورت سجا سکتے ہیں اور جب ہمیں سب پتہ ہے کہ پیسے بھی کیسے کما سکتے ہیں اور جب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خرابیاں کہاں ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اچھائیاں کہاں ہیں, جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے شعبوں میں تو لیکن اس وطن عزیز پاکستان کو دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کراتے. 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے ہم ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم قومیتوں اور فرقوں میں بٹ کے رہے ہیں صرف پاکستان کی کاسٹ کے اوپر. اگر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو وہ ہے یہ والے 24 کروڑ لوگ. ان 2 چیزوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جو صاحب ثروت ہیں, صاحب اختیار ہیں, وہ صرف ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے. ہم اس حد تک قومیتوں, فرقوں اور سیاست میں بٹ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک تو دور, نفرتوں سے اظہار خیال کرتے. اور اس نفرت کا انجام یہ ہوا کہ آج دنیا میں پاکستان کس نام سے جانا پہچانا جاتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں. آج علیم خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ایسا لائیں جسے دنیا دیکھے اور پاکستان آئے, لیکن ہم سب مل کر یہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عارف حبیب صاحب, علانا صاحب, باقی لوگ, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے بزنسز کو 4 چاند لگائے ہیں تو پاکستان کو بھی 4 چاند لگنے چاہیے. ہمارا برانڈ پاکستان ہونا چاہیے. اور اگر ہم سب مل کے اس کے لیے کام کر لیں گے تو جو سب ہم چاہتے ہیں, جو بلوچستان کی ترقی ہے, جو سندھ کی ترقی ہے, بلکہ پورے پاکستان کی ترقی ہے, وہ ہو سکتی ہے, یقینی طور پہ ہو سکتی ہے. کیونکہ ترقی تو موجود ہے. جنہوں نے کام کرنا ہے وہ یوتھ بھی موجود ہے, وہ بزرگ بھی موجود ہیں. 75 سال, پھر 76 اور اب 77, سبھی کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے
कितनी बार आप सुनते रहे होंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, फिर बच जाता है दुआओं से। सभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे। हमें कामयाब करना है इस पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को करना है, इंडिविजुअल्स को नहीं करना। मुझे अपने इस वतन का नाम ठीक करना है, और वो कैसे होगा जब हम एक दूसरे को ठीक करने के बजाय, एक दूसरे पे तनकीद करने के बजाय, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय एक दूसरे का मसीहा बन जाए। आज अगर अलीम खान साहब का ये प्रोजेक्ट आया है तो हम सब दुआ गो हों कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। इससे पाकिस्तान की इज्जत को जोड़ना है। इसी तरह कोई भी शख्स जो इस पाकिस्तान में अच्छा काम करे, हमें उसके साथ खड़ा होना है। और आज मैं अपने इस पाकिस्तान के उन इदारों से भी बात कहूँगा कि यहाँ जो प्रोजेक्ट्स लेकर आना चाहते हैं और आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें इन बाकी चीज़ों से निकालें कि कभी कोई कोर्ट में फंस जाता है, कभी कोई नैब में फंस जाता है। जो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है उसकी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अगर यही सिलसिला जो 75 सालों से चलता रहा है, तो फिर कैसे ट्रस्ट करेगा कोई हमारे बिजनेसेस पे और हमारे इस वतन पे। तो हमें एक फैसला करना है, सिमत का तयन करना है, और फिर सबको एक दूसरे का मसीहा बन के आगे चलना है। बहुत वक्त गुजर चुका है, एक पूरी नस्ल आपने खराब कर दी है, अगर आपको एहसास हो तो। क्योंकि हम किसी अच्छे नाम से नहीं पहचाने जाते। हम अच्छे कारोबार से ज़रूर पहचान लिए जाएंगे, अच्छी किसी सौगात से ज़रूर पहचान लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ कई सालों से लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदली हैं, स्टेटस को है। 30 साल से जो ड्राइवर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सिक्योरिटी गार्ड ही है, जो रंग वाला है वो रंग वाला है। लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदल रही। पाकिस्तान के अंदर लोग रोज़गार जैसी चीज़ के लिए बेयारो मददगार घूम रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं करता। आए मिलके इस पाकिस्तान के लिए कुछ करें। जिन्हें हाथ नहीं थामा और आज वो मुंतज़िर हैं हमारी गाइडेंस के, हमारे इंतज़ार में है, लेकिन शायद हम बहुत मसरूफ़ हैं और सियासत में लगे हुए हैं। सियासत तो 75 सालों से हो ही रही है और उसका अंजाम इख्तिदाम सभी के सामने है। लेकिन एक बार हम सबको ये ज़रूर सोचना होगा कि हम इस वतन की भी वही इज्जत है, हमारे इस माशरे में है या नहीं है, ये एक सवाल है। और उसके लिए एक कदम बढ़ाया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज अलीम खान साहब जिस तरह सोच रहे हैं, और मैं ये नहीं सोचता, यकीन जाने अलीम खान साहब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको ओन करेंगे और ये हम सब का प्रोजेक्ट है। कोई बलूचिस्तान नहीं, कोई लाहौर नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं और ये हम सब हैं। हमें ये सोच लानी पड़ेगी, इस दिमाग और दिल को बड़ा करना है। हमें जिस तरह हम अपने ड्राइंग रूम को सजाने की बात सोचते हैं ना, इस तरह हमें अपने गली कूचों, बाज़ारों और अपने सूबे और अपने मुल्क को सजाना है, जिसकी शुरुआत इन्होंने की है। अलीम खान साहब को मैं बहैसियत गवर्नर सिंध इस बात का तहे दिल से यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी हमसे हुआ, हम हाजिर हैं आपके लिए।
वेलकम करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को, चीज़ों को ऑन करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको ये नज़र भी आएगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आज मेरे पास इनकी बुलाने पर आया, कोई भी शख्स जो अच्छा काम करना चाहे, करना चाहता है, हम सबको उसका साथ देना है। नफरतें उतार के फेंक देनी है। बहुत कुछ हो गया, बहुत चला गया, वो फरेबे सफर खा रहे थे हम, फरेबे मालूम ही नहीं कि कहां जा रहे थे। लेकिन अगर हम सब चाहेंगे तो मालूम टूटते तारों को देखकर, टूटते तारों को देखकर कि मंजिल से पास आ रहा है, हमें मंजिल के पास जाना है। और वो जो किसी ने खूब कहा कि 75 सालों से एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम। अलीम भाई, 75 सालों से एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, इस वहम में मगन कि बढ़ते जा रहे हैं हम, बड़े नहीं हैं हम। दिल पे हाथ रख के कहें। वैसे तो आप लोग ताली भी बजाने में सोचते हैं क्यों बजाएं, लेकिन इससे सेहत अच्छी होती है, ग्लो करता है। और अगर बहुत जोर से बजा दें तो रात तो दिल पर हाथ रख के बजाए। शायद मैं बढ़ गया आगे, आरिफ भाई बढ़ गए होंगे, सुल्तान भाई बढ़े, पूरा वतन नहीं बढ़ा है। मज़ा तो तब आए जब मेरा अपना ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में घर जाए, उसका भी अपना घर हो, उसका भी बच्चा बाहर पढ़ रहा हो, और वो सुबह प्यार से सलाम करके कहे सर बड़ा शुक्रिया, मैं भी खुश हूँ। काश मैं जब अपनी 2000 गज की कोठी बनाऊँ तो उसमें छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बगैर एसी के ना बनाऊँ, उसका भी सोचूं कि इसकी भी फैमिली होगी, उसमें भी एयर कंडीशन लगाओ। उन लोगों के लिए जो साहिब हैसियत सरबत हैं, थोड़ा दिल बरा कर लें, सब कुछ हो सकता है। और किसी ने खूब कहा, संजानी साहब, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, हम सब जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे। हमें यकीन है कि ये चश्मा अलीम खान साहब की इस पार्क व्यू, बीच व्यू से ही निकलेगा। तो हम सब निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश हमने गवर्नर हाउस में की। रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर किया, और मैंने उन सब के साथ बैठ के किया। उसमें सभी मेज़बान थे, दरवाजे खुले हुए थे। और फिर हमने आईटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के लिए वेबसाइट बनाई। 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 महीने में 5.5 लाख लोगों के ही टेस्ट लिए। उसमें से हम 50,000 बच्चे, 50,000 बच्चियों को गवर्नर हाउस के अंदर एयर कंडीशन मार्कीज़ लग चुकी हैं। कंप्यूटर लैब 1,000 कंप्यूटर्स की लग चुकी है। फैकल्टी हायर हो चुकी है, क्लासेस शुरू होंगी। और 1 साल में हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उनसे 1 रुपया नहीं ले रहे किसी भी चीज़ का। इसी तरह ताकतवर पाकिस्तान के नाम से यूनिटी फूड ने हमें 1 लाख राशन बॉक्सेस दिए, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रोज़ाना हम 5 से 8 हज़ार लोगों को गवर्नर हाउस में, जो अपने घर से बेरोज़गार हैं और राशन के लिए परेशान हैं, वो भी चल रहा है। सारी चीज़ें कर रही हैं, इसमें कोई 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, पाकिस्तान का
یا گورنر ہاؤس کا نہیں ہے، ہم سب مل جل کے کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے دل کی بالکل گہرائیوں سے یقین ہے کہ علیم خان صاحب کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ضرور پورا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ جب آدمی دل سے چاہتا ہے نا، وہ چیز ضرور پوری ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میں ضرور یہ ہم سب یہ دل سے ضرور دعا کریں۔ معیشت کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے 9 مئی جیسے واقعات ہوئے، پوری قوم ایک شخص کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں یہ بات یہاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن دھوکہ ہوا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری قیادت ہے، جسے میں آپ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، کہ جہاں کھڑے ہیں، اور آج بھی میرے پاس دوپہر میں سعودی ایمبیسڈرز اپنے انویسٹرز کے ساتھ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، اور وہ پھر یہاں اور دوبارہ بھی آ رہے ہیں۔ اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے۔ ایک آخری موقع مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ آنے والے یہ 2-3 سال پاکستان کے لیے معاشی طور پہ بہت بہترین سال ہوں گے۔ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، چیزیں بہت اوپر جائیں گی۔ جو بھی انویسٹمنٹ میں وہ ضرور پیسے کمائے گا، کیونکہ اس وقت جو قیادت ہے یا جو سوچ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ ہمیں اس وطن عزیز پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا نہ بجائیے گا۔ میں